السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو پچھلی جو قرآن کی کلاس ہوئی تھی اس میں نے سورہ عادیات کو پڑھایا تھا اور 6 آیتوں تک مکمل تجوید کے ساتھ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آگے پڑھیں گے اور پورے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں رواں پڑھ دیتی ہوں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اب ہم لوگ ہجے کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ قاعدہ بھی دیکھیں گے۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، وَإِنَّهُ عین زبر عا، لام کھڑا زبر لا، علا، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک، لام زبر لا، شین زبر شا، لش، ہا یا زیر ہی، دال دو پیش دن، لشہیدن۔ اور جب ہم آیت کریں گے یعنی کہ وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو یہاں پر دال کے اوپر ہم جزم لائیں گے، دال کو ساکن بنائیں گے اور یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ وہ کس طرح سے؟ دیکھیے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اب دیکھیے قاعدہ، واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے یعنی کہ فتحہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو فتحہ، کسرہ اور ضمہ کسی بھی حرف کے اوپر آئے یعنی کہ زبر اور زیر اور پیش۔ عربی میں بولتے ہیں فتحہ زبر کو، کسرہ زیر کو اور ضمہ پیش کو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیے فتحہ ہے یعنی کہ زبر ہے، تو اسے ہم جلد ادا کریں گے کیونکہ زبر زیر پیش کو ہم جلد ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں پڑھنا ہے واو زبر وا، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، یعنی کہ نون مشددہ ہے، نون کے اوپر تشدید ہے۔ تو نون اور میم دو حرف کے اوپر کبھی بھی تشدید آئے تو وہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے، اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر ناک میں آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے، یعنی کہ حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان۔ اب دیکھیے جو میری بہنیں اور میرے بھائی مجھ سے نئے جڑ رہے ہیں میرے چینل کے ساتھ، تو وہ سوچ رہے ہوں گے یہاں تو الف ہے اور میں حمزہ بتا رہی ہوں، تو یاد رکھیے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب الف خالی ہو تبھی ہم الف کہیں گے، اگر حرکت کے ساتھ ہو تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ حمزہ۔ یہاں دیکھیے حرکت کے ساتھ ہے، کسرہ کے ساتھ ہے الف، تو یہاں پر ہم حمزہ بول کر پڑھیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان،
हा उल्टा पेश हु, इन्नहु। तो नून के ऊपर तो गुन्ना होगा मुशद्दद का, तो यहाँ पर ठहराव करना है थोड़ा, इन्ना, इन्ना, ठीक है। और हु में देखिए हा के ऊपर उल्टा पेश है। उल्टा पेश किसके बराबर होता है? वाव मद्दा के। और वाव मद्दा को हम किस तरह पढ़ते हैं? थोड़ा खींचकर। तो उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के। तो मतलब ये है कि वाव मद्दा को हम जिस तरह पढ़ते हैं उसी तरह हम उल्टा पेश को भी पढ़ेंगे, यानी जितना उसे खींचेंगे उतना ही उल्टा पेश को भी खींचना है। तो एक अलिफ की मकदार है तो हम एक अलिफ की मकदार के बराबर हम खींचेंगे, यानी कि हा उल्टा पेश हु व इन्नहु। क्लियर? आगे चलिए। आइन जबर आ, लाम खड़ा जबर ला, अला। देखिए आइन के ऊपर जबर है, जल्द अदा करेंगे, और लाम के ऊपर क्या है? खड़ा जबर है। खड़ा जबर को एक अलिफ के बकदर खींचकर पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिए खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश तीनों को एक अलिफ के मकदार के बराबर खींचकर पढ़ना है। तो आइन के ऊपर तो जबर है, जल्द अदा करेंगे, लेकिन लाम के ऊपर खड़ा जबर है, इसे एक अलिफ के मकदार के बराबर खींचना है। वो इस तरह से अला, अला। अब याद रखिए ये जो हर्फ आइन है ये पूरे साफ और वाज़ेह तौर पर अदा होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि यहाँ पर आप हमजा पढ़ रहे हैं। तो आइन को बिल्कुल हलक से निकालना है। आइन, आइन, अला, अला, अला। क्लियर? आगे चलते हैं। ज़ाल खड़ा जबर ज़ा, लाम ज़ेर ली, काफ जबर का, ज़ालिका। ज़ा को भी खींचना है एक अलिफ के मकदार के बकदर। और ज़ाल किस तरह अदा होती है? अपनी जबान को थोड़ा आगे की तरफ निकालना है। इतना निकालना है कि अगर हमारे सामने कोई बैठा हुआ है तो उसे हमारी जबान की नोक नजर आए, इतना हमें निकालना है। और निकालते हुए ऊपर की दांतों से सटाकर ज़ाल अदा करना है। ज़ाल, ज़ाल, ज़ालिका। लाम के नीचे क्या है? जेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे और मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल से बचना है। यानी कि अगर कोई पढ़ता है ज़ालेका, क्या पढ़ता है? ज़ालेका, तो ये हो गया मजहूल। हमें मजहूल से बचना है। हमें क्या पढ़ना है? ज़ालिका, ज़ालिका, ज़ालिका। नीचे आ जाइए। लाम के ऊपर जबर की हरकत, शीन के ऊपर भी जबर की हरकत। तो लशा जल्द पढ़ेंगे। और हा या जेर ही, या साकिन से पहले जेर है, या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा का कायदा है। और या मद्दा को हम कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बाकदर। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, लशही, लशही। दोनों को जल्द अदा करेंगे और ही में सिर्फ खींचेंगे, लशही। और दाल के ऊपर दो पेश की तनवीन है, और यहाँ पर हम दाल को साकिन बनाएंगे, जज्म लाएंगे, क्योंकि हमें आयत करना है। और आयत का तरीका क्या है? आखिरी हर्फ पर जज्म लाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला नूरानी कायदा में आयत करने का तरीका मैं तफसील से बताऊंगी। अभी फिलहाल यहाँ पर दाल को साकिन बनाना है। लशहीद, लशहीद। अब देखिए ये जो या मद्दा किया हमने, या साकिन से पहले कोई भी हर्फ और उसके नीचे जेर आती है तो या मद्दा का कायदा बनता है। अब जो मेरी बहनें और भाई मेरी चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि या मद्दा किसे कहा जाता है, तो वो मेरे चैनल में प्ले लिस्ट के नाम से बना हुआ है, नूरानी कायदा सीरीज। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। या मद्दा का कायदा अलग मैं तफसील से बताई हूँ, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर या मद्दा करते हुए खींचेंगे एक अलिफ के बाकदर, और दाल में हम वक्फ करेंगे, ठहर जाएंगे, तो हो जाएगा लशहीद। और दाल के ऊपर कलकला भी करना है। कलकला कहते हैं आवाज के टकराने को। जब हम कलकला करते हैं तो आवाज टकराती है और डबल साउंड आता है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे लशहीद, ठीक है, अगर कोई करता है लशहीद तो ये कलकला नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि दाल के ऊपर बिल्कुल ठहराव हो जा रही है। दाल के ऊपर ठहरना नहीं है, डबल साउंड निकालना है, आवाज को टकरानी है। लशहीदो, लशहीदो।
یہ ایسے جو ہو رہا ہے یہ آواز ڈبل آ رہی ہے، ٹھیک ہے. لشہید. تو ایک بار میں رواں پڑھ کے دکھاتی ہوں، آپ لوگ غور کرنا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. کلیئر؟ اب آگے چلتی ہوں. واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، وَإِنَّهُ. سیم ٹو سیم جو ہم لوگوں نے اوپر پڑھا، نون غنہ کرنا ہے یہاں پر اور ہو میں ایک الف کے بقدر کھینچنا. وَإِنَّهُ. وَإِنَّهُ. آگے چلیے. لام زیر لی، لام کو جلد ادا کریں گے. لام کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ یعنی کہ زیر ہے. اور ہا کو با سے ملائیں گے پیش کی حرکت کے ساتھ. ہا با پیش حب یعنی کہ ضمہ. حب با لام زیر بل، حب بل. تشدید جس حرف پر شد ہوتا ہے یعنی کہ تشدید ہوتا ہے اس حرف کو ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 2 مرتبہ یعنی کہ 2 ٹائمز. ایک بار پڑھتے ہیں ہم پیچھے والے حرف یعنی کہ تشدید والے حرف سے پہلے جو حرف ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں ہا ہے تو ہا کو با سے ملائیں گے اور پھر با کو لام سے ملائیں گے. اگر یہاں پر لام کے اوپر جزم نہیں ہے تو ہم پھر با زیر بی پڑھتے، لیکن چونکہ لام کے اوپر جزم ہے تو با کو پھر لام سے ملائیں گے. حبل. اور خا یا زبر خی. دیکھیے یا ساکین، اور یا ساکین سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ زبر کی حرکت ہے. اور یا ساکین سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، الف سے یا تک کوئی بھی حرف ہو اور اس کے اوپر زبر اگر آتی ہے تو ہم وہاں پر یائلین کا قاعدہ بنتا ہے اور یائلین کی طرح ہم پڑھیں گے. یائلین کو پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے؟ یائلین کو پڑھنے کا قاعدہ ہے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے اور معروف پڑھنا ہے. یعنی کہ خا یا زبر خی نرم پڑھنا ہے اور معروف پڑھنا ہے اور جلد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی کرتا ہے خا یا زبر خے تو یہ کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا. اگر کوئی پڑھتا ہے خا یا زبر خی تو یہ کیا ہو گیا؟ سختی ہو گئی. ہمیں سختی نہیں کرنی ہے، ہمیں نرم آواز کے ساتھ اور جلد ادا کرنا ہے. خا یا زبر خی. اور را زیر ری، را باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. یاد رکھیں را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھنی ہے، لیکن را کے اوپر اگر ضمہ یا فتحہ آتا ہے یعنی کہ زبر یا پیش آتا ہے تو را کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے یعنی کہ ہیوی بنائیں گے، منہ بھر کر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں زیر ہے تو ہمیں باریک پڑھنا. اگر یہاں پر را کے اوپر زبر ہوتا یا پیش ہوتا تو ہم کیا پڑھتے؟ خیر خیر، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں زیر ہے تو ہم پڑھیں گے خیر خیر، ٹھیک ہے. اور لشدید اسی طرح لام کے اوپر زبر، شین کے اوپر زبر جلد ادا کریں گے. دال کو یا سے ملاتے ہوئے یا مدہ کریں گے جیسے یہاں پر ہم نے کیا تھا. یہاں دیکھیے یا ساکین ہے، یہاں بھی یا ساکین ہے، یہاں بھی یا ساکین سے پہلے زیر ہے اور یہاں بھی زیر ہے. چاہے کوئی بھی حرف ہو حرکت کو دیکھنا ہے. یا ساکین سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے یعنی کسرہ کی حرکت ہے، ٹھیک ہے. تو اور یہاں پر جزم لائیں گے اور یہاں بھی وقف کریں گے. اب دیکھیے پڑھنا کس طرح ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہاں بھی ہم قلقلہ کریں گے. اب دیکھیں یہاں پر کون سا حرف ہے؟ ہا ہے. اگر کوئی نکالتا ہے ہا تو یہ غلط ہوگا. یاد رکھیے قرآن میں ایک حرف کی بھی غلطی سے معنی الگ ہو جاتا ہے، معنی کچھ سے کچھ بدل جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا علم تجوید سیکھے. علم تجوید سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے؟ فرض عین ہے، یعنی کہ بے حد ضروری ہے. اگر اسے نہیں سیکھے تو کوئی چارہ ہی نہیں، اس کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر حرف نکالیں گے ہا. کیا نکالیں گے؟ ہا. ہا نہیں ہے، ہا نہیں ہے، ہا ہے، ہا حلق سے نکالیں گے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کلیئر؟ آگے چلیے.
हमजा जबर आ, फा जबर फा, अफा, लाम अलिफ जबर ला, अफला, या आइन जबर या, लाम जबर ला, मीम पेशमू, यालमु, अफला यालमु, अफला यालमु, हमजा जेर ई, दाल अलिफ जबर दा, बा आइन पेश बू, सा जेर सी, रा जबर रा, बुअसिरा, बुअसिरा, मीम अलिफ जबर मा, फा लाम जेर फिल, काफ पेश कू, बा वाव पेश बू, रा जेर री, मा फिल कुबूरी। अब देखिए हम कायदा देखते हैं, हमजा के ऊपर जबर की हरकत, फा के ऊपर भी जबर की हरकत, दोनों को हम क्या करेंगे, जल्द अदा करेंगे, ठीक है। और लाम अलिफ जबर ला, यहाँ देखिए अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, यहाँ एक अलिफ के बाकदर खींचेंगे। अलिफ मद्दा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अलिफ खाली से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा बनता है। यहाँ पर आपने गौर करना है, क्या गौर करना है, देखिए अलिफ खाली है, ठीक है, अलिफ खाली है कि नहीं, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, और इससे पहले वाला हर्फ क्या है, लाम है, और लाम के ऊपर कौन सी हरकत है, जबर की हरकत है, ठीक है। तो हम लोगों ने कायदा क्या पढ़ा है, अलिफ खाली से पहले जबर हो, यानी कि अलिफ खाली से पहले जो हर्फ है उसके ऊपर जबर है, यानी कि फतहा है, तो हमें एक अलिफ के बाकदर खींचना है। वो किस तरह, अफला, 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 क्लियर। या को आइन से मिलाएंगे, आइन के ऊपर जज्म है, और जज्म वाले हर्फ को हम पीछे वाले हर्फ से मिलाते हैं, यानी कि या आइन जबर या, लाम को जबर के साथ जल्द पढ़ेंगे और मुंह को भी जल्द पढ़ेंगे, लेकिन मारूफ पढ़ेंगे, यानी कि या अलमु मजहूल हो जाएगा, हमें पढ़ना है या अलमु, या अलमु, या अलमु। हमजा जेर ई जल्द अदा करेंगे, और दाल अलिफ जबर दा, यानी कि अलिफ मद्दा, अलिफ खाली है, अलिफ खाली से पहले जबर है, इज़ा, 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 इज़ा। बा को फिर आयन से मिलाएंगे पेश की हरकत के साथ, बो, सा जेर सी, मजहूल से बचेंगे और मारूफ पढ़ेंगे, यानी कि सा जेर से नहीं, सा जेर सी, बुअसी, बुअसी, बुअसी। रा, रा के ऊपर जबर है और हमें मोटा करके पढ़ना है, यानी कि पूर पढ़ना है, बुअसीरा, 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 क्लियर। माँ में फिर अलिफ मद्दा करेंगे, अलिफ खाली से पहले क्या है, जबर है, फी, फा को लाम से मिलाएंगे, लाम के ऊपर जज्म है, तो जेर की हरकत के साथ फा लाम जेर फिल, मा फिल, काफ को पेश की हरकत के साथ मारूफ पढ़ेंगे, यानी कि काफ पेश कू, बा वाव पेश बू, वाव मद्दा होगा, क्यों, क्योंकि देखिए वाव साकिन है और उससे पहले क्या है, पेश है, तो वाव मद्दा करेंगे यहाँ, यानी कि एक अलिफ के बाकदर खींचना है। वो किस तरह, मा फिल कुबू, मा फिल कुबू, मा फिल कुबू, और रा में वफ करेंगे, जज्म लाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आयत हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर रा के ऊपर जज्म आ जाएगा, तो रा साकिन बन गई। तो अब यहाँ पर मसला आता है कि रा को हम पूर्व पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि रा के नीचे जेर है, ठीक है, लेकिन रा की हरकत तो हट जाएगी और यहाँ पर जज्म आ जाएगा। तो याद रखिए, जब रा साकिन है और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, जैसे यहाँ पर हम लोग जज्म लाएंगे तो रा साकिन है और उससे पहले वाला हर्फ क्या है, वाव है, उसके ऊपर भी जज्म है, ठीक है। तो हम उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे और उस पे जो हरकत होगी उसी के मुताबिक फैसला होगा कि रा पूर करनी है या बारीक करनी है। तो देखिए बा के ऊपर कौन सी हरकत है, पेश की हरकत है, तो यहाँ रा को हम पूर करेंगे, ठीक है। अगर बा के नीचे जेर की हरकत होती तो हम रा को क्या करते, बारीक करते। तो याद रखिए, रा अगर साकिन है और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे, यानी कि रा साकिन है, यहाँ पर साकिन होगा ना जब हम आयत करेंगे, तो उससे पहला वाला हर्फ भी साकिन है तो उससे पहला वाला हर्फ को देखेंगे। अगर बा के ऊपर जबर पेश है तो हम इस रा को पुर करेंगे, और अगर बा के नीचे जेर होती तो यहाँ हम रा को बारीक करते, ठीक है।
क्लियर? जो चीज समझ में नहीं आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, फिर मैं इंशाअल्लाह ताला उस चीज को फिर से समझाऊंगी। तो यहाँ पर रा को हम क्या करेंगे, पूर्व पढ़ेंगे। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर। क्लियर? आगे चलिए। वाव ज़बर वा, हा स्वाद पेश, हुस लाम ज़बर ला, व हुस्सिला, व हुस्सिला। स्वाद को मुंह भर कर बोलेंगे और हा को स्वाद से मिला रहे और स्वाद को फिर जेर की हरकत के साथ पढ़ेंगे। वाव को भी जल्द पढ़ना है क्योंकि जबर है। व हुस्सी और लाम के ऊपर जबर है, इसे भी जल्द अदा करना है। व हुस्सिला, मा में अलिफ मद्दा करेंगे, अलिफ खालिद से पहले जबर है और फा को जेर की हरकत के साथ स्वाद में मिलाएंगे। मा फिस, स्वाद के ऊपर फिर पेश की हरकत पढ़ेंगे और दाल वाव पेश दू, वाव मद्दा का कायदा, वाव साकिन से पहले क्या है, पेश है। एक अलिफ के बकदर खींचना है और रा के ऊपर जज्म लाकर हम यहाँ पर आयत करेंगे। तो यहाँ भी रा क्या होगी, पुर होगी। क्यों? क्योंकि देखिए दाल के ऊपर पेश की हरकत है, यहाँ भी हम पुर पढ़ेंगे। यानी के वहुस्सिल मा फिस्सुदूर, वहुस्सिल मा फिस्सुदूर। आगे चलिए। इन्ना, फिर गुन्ना में नून मुशद्दद का इन्ना। अब कोई पढ़ दे इन्ना, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए जबर की हरकत है। अब जबर को हम जल्द पढ़ते हैं। इन्ना इन्ना इन्ना। रब्बहुम, रब्बहुम। देखिए रा बा जबर रब और बा जबर बा, रब्बा, हा मीम पेश हुम, रब्बहुम। यहाँ पर भी थोड़ा ठहराव करना है। ये कायदा इंशाअल्लाह ताला नूरानी कायदा में आएगा। मीम साकिन के बाद बा आती है तो एक कायदा बनता है, यहाँ पर थोड़ा ठहराव करना है। फिलहाल आप लोग ये समझिए, नूरानी कायदा में जब आएगा मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगी। इन्ना रब्बहुम बिहिम, बाज़ेर बी और हा मीम ज़ेर हिम, बिहिम। या वाव जबर यौ, यहाँ देखिए वाव साकिन और वाव साकिन से पहले क्या है, जबर है। यहाँ पर वावलीन का कायदा बन रहा है और वावलीन को हम नर्म आवाज के साथ जल्द और मारूफ पढ़ते हैं। हरूफलीन कितने हैं, दो हैं, वावलीन और यालीन। वो मैंने नूरानी कायदा में बताया है, आप लोग तफसील वहां जाकर देख लें। फिलहाल यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि हम जल्द पढ़ेंगे वावलीन को। या वाव जबर यौ, मीम जबर मा, मीम की हरकत क्या है, फतहा है, यानी कि जबर है, जल्द पढ़ना है। हमजा के नीचे फिर जेर है, इसे भी जल्द पढ़ना है और मारूफ पढ़ना है। जाल को लाम से मिलाते हुए दो जबर की तनवीन के साथ मिलाएंगे और हिज्जे किस तरह करना है वो आप गौर से देखें। जाल लाम दो जेर जिल, क्या हिज्जे करेंगे, जाल लाम दो जेर जिल, लाम जबर ला, जिल्ला, खा जबर खा, बा या जेर बी, रा दो पेश रुन, ला खबीरुन। ठीक है, तो जाल को लाम से मिला दिया और लाम को फिर जबर की हरकत के साथ पढ़ा और खा को फिर जबर की हरकत के साथ जल्द पढ़ेंगे। और बी में देखिए या मद्दा हो रहा है क्योंकि या साकिन है और या साकिन से पहले क्या है, जेर है। या साकिन से पहले जेर किसी भी हर्फ हो और जेर आए वहां पर, तो वहां पर हम या मद्दा का कायदा करते हैं, यानी कि एक अलिफ के बकदर खींचते और फिर रा के ऊपर हम क्या करेंगे, वक्फ करेंगे, यानी कि रा के ऊपर हम जज्म लाएंगे। अब देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर हम आयत कर रहे हैं ना, यहाँ पर जब हम आयत करेंगे तो यहाँ पर भी रा साकिन हो जाएगी। तो पहले वाले हर्फ को देखेंगे क्या है, वो भी साकिन, और उससे पहले वाले हर्फ क्या है, बा है, बा के नीचे कसर है, तो यहाँ पर हम रा को बारीक करेंगे। ठीक है, इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। बारीक समझ में आ रही है। मैं दो आयतों को पढ़ती हूँ तो यहाँ पर आप देखना, मैं हेवी बनाऊंगी यानी कि पूर्व पढ़ूंगी और यहाँ पर मैं बारीक पढ़ूंगी, वो आप गौर करना। वहुस्सिल मा फिस्सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। समझ में आया?
اب میں پورا سورہ کو راما پڑھ دیتی ہوں. آپ لوگ بہت خوب ساری کوشش کیجئے قرآن کے پیچھے کہ قرآن درست ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تو انشاءاللہ تعالی مشق کیجیے، کوشش کرتے رہیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم دوسری سورہ کو شروع کریں گے. انشاءاللہ تعالی سورہ زلزال ہم لوگ پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں جو بھی محنت کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.